All right, hello everyone. This is your host Sharia Ali, and welcome to my channel Sharia Lift. And in today's video, I'm going to talk about muscle gain. तो this is the highly in demand topic, right? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि how to gain muscle, how to add muscle to your body, right? अच्छा, इस वीडियो में मेरी एक assumption है सीधी सीधी सी कि you actually want to gain more muscle, right? So you are going to follow the steps and the advices I'm going to tell you. So you have to do something, right? आप like बैठे बैठे आप assume नहीं कर सकते कि आपका muscle gain हो जाएगा. बहुत सारे लोग मेरे पास ये आते हैं, कहते हैं कि हमें मसल गेन करना है लेकिन हमें जिम नहीं जाना. ठीक है, हमसे जो एक्सरसाइज नहीं होती है, अगर आप कुछ ऐसी डाइट बता दें जिससे हमारा मसल गेन हो जाए. सो ओके, यू विल गेन सम सॉर्ट ऑफ मसल, मगर इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इम्पैक्टफुल. So you have to do something about it. You have to take action. And in today's video, I'm going to highlight three major factors that are going to, impact your muscle gain. So let's get into it. Before actually getting into it, let me introduce myself once more. So I'm Sharyar Ali, and I work as a data solutions architect in a firm. Bodybuilding is not my profession; it's a passion that I have been following for around 10 years now, and I make videos to help you guys in different ways. So for example, fat loss. मैंने fat loss के ऊपर वीडियो बनाई थी. Steroids के ऊपर मेरे suggestion के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी. And this one is about gaining muscle for maybe the beginners or intermediate people, right? So let's get into the topic now. So the first point I'm going to discuss is diet, right? सबसे important point है जब भी आप किसी भी किस्म की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, whether you want to lose weight or gain more muscle. In either case, you need to make sure your diet you're taking a proper diet, right? Dieting is 70% of any transformation, and 30% are the other factors such as weightlifting and cardio, etc. That's only 30% of it. 70%, the major portion is diet. So diet is important, and you need to be consistent with your diet. अब dieting जो है weight gain की, जब ये muscle gain की जब बात करें, तो dieting is relatively a bit easier as compared to when losing weight, क्योंकि यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी आपको छूट मिल जाती है in eating and all, but still it's a bit hard क्योंकि डाइट में भी कुछ फैक्टर्स हैं. अच्छा, अब एक एक करके सारे फैक्टर्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो जब डाइटिंग की बात होती है तो यू नीड टू कंज्यूम प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन. सबसे पहले जब भी आपको वेट गेन करना है या वेट मसल गेन करना है, तो यू नीड टू इनटेक बेसिकली मोर प्रोटीन. अब ये प्रोटीन कितना लें, ये कैसे समझ में आएगा, राइट? तो सबसे पहले तो ये कि आपको ये अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी बॉडी वेट के हिसाब से. फॉर एग्जांपल, आई एम 75 kgs, सो आई विल जस्ट डू अ सिंपल कैलकुलेशन. 75 मल्टीप्लाई बाय 1.5. आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं. इट्स समवेयर अराउंड 115 grams ऑफ प्रोटीन दैट्स रिक्वायर्ड फॉर मी पर डे. अब बहुत सारे आप जब इस पे खैर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आपको लाइक इक्वेशंस मिल जाएंगी. कोई कहता है इट्स लाइक 1 ग्राम पर केजी, कोई कहता है इट्स 1.2, और कोई कहता है इट्स 2, एंड सम पीपल इवन टेक इट अप टू 2.2 grams per kg. But ideally, I would like to say it's let's just keep it very simple. 1.5 grams per kg of protein required. So if you weigh 75 kgs, you can multiply 75 with 1.5, and you will get the amount of protein that you need to maintain or increase basically your muscle size. So सबसे पहली चीज, you need to take adequate amount of protein daily, right? Next is, अब आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए कुछ कार्ब्स चाहिए होते हैं, कैलोरीज चाहिए होती हैं, राइट? एनर्जी चाहिए होती है. सो जब वेट लॉस की बात होती है तो उसके अंदर हमें कैलोरी डेफिसिट करना होता है. बट व्हेन वी आर गेनिंग वेट, वी नीड टू मेंटेन अ कैलोरी सरप्लस. अब कैलोरी सरप्लस होगा तो इसको भी थोड़ा सा ख्याल में रखना है. अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि दे स्टार्ट ईटिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग जंक फूड एंड ऑल ऑफ दैट. So you still need to eat clean. You still need to eat clean protein, clean carbs. आप unhealthy food नहीं खा सकते. You have to cut off on sugar still. आप बहुत ज़्यादा like artificially processed products और artificial sugars, artificially flavored stuff, ये सब चीज़ें आपको mostly avoid करनी है. You need to eat clean food, but you need to maintain a calorie surplus. For example, अगर मेरी let's say daily की requirement है 2500 कैलोरीज हैं मेरी डेली की रिक्वायरमेंट,
So I will eat somewhere about 3000 or 3200 कैलोरीज। अब ये कैलोरी सरप्लस इतना रहे कि मेरा मसल गेन हो। अगर ये एक हद से ज्यादा एक्सीड हो जाएगा तो मसल गेन के साथ साथ मेरा फैट गेन भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। आइडिया ये है कि आप लीन मसल ग्रो करें। ये नहीं कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि दे जस्ट बल्क एक्सेसिवली। हद से ज्यादा बल्क आप कर देंगे नेचुरली तो फिर उसको जब आप वापस से शेप में लाने के लिए श्रेडिंग शुरू करेंगे तो वो इट्स गोइंग टू बी हार्ड। एंड ये गलती मैं कर चुका हूँ। मैंने एक टाइम के ऊपर 95 केजीज तक का बल्क किया था नेचुरली, एंड फ्रॉम दैट 95 केजीज आई हैड टू मुझे अब शेडिंग करनी थी। तो अब जब शेडिंग करने आया तो फिर आई फाउंड आउट कि ओके मैं बहुत आगे आ गया हूँ, एंड आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ मसल बट आई हैव आल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ फैट, क्योंकि मैंने डाइटिंग प्रॉपर नहीं की। मैंने बहुत ज्यादा जंक फूड भी खाया, मैंने अपने कार्ब्स को कैलकुलेट नहीं किया, प्रोटीन्स को कैलकुलेट नहीं किया। आई डिडंट लुक मच एट माय मैक्रोस, राइट। सो इवेंचुअली इसका नतीजा ये हुआ कि जो शेडिंग पीरियड था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर वाला था। बहुत मुश्किल हुई मुझे उस वेट को कट ऑफ करने में, और मुझे टाइम भी ऑफ कोर्स ज्यादा लगा क्योंकि मैंने एक्सेसिव फैट भी गेन कर रखा था मसल के साथ साथ। तो हमने ये नहीं करना। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड वी नीड टू ग्रो मसल, बट लीन मसल। हमें फैट गेन होगा, बल्क में फैट गेन होगा एंड दैट्स नॉर्मल, बट वी नीड टू मेक श्योर कि फैट गेन मिनिमम हो और मसल गेन मैक्सिमम हो, लीन मसल गेन हो मैक्सिमम। अच्छा, अब यहाँ पे दो किस्म की बॉडी टाइप्स की बात होती है। एक वो लोग जो कि थोड़े से फैटी हैं और दूसरे वो जो कि लाइक स्किनी है। तो स्किनी लोगों को भी दे स्टिल नीड टू ईट मोर प्रोटीन एंड दे स्टिल नीड टू ईट मोर कार्ब्स एज वेल। फैटी लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा ये सीन होता है कि दे नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग। प्रोटीन इंटेक आपने बढ़ाना है, मसल साइज आपने बढ़ाना है, लेकिन आपने यहाँ पे ये ध्यान भी रखना है कि आपका फैट हद से ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ वेयर यू आर गोइंग विद इट। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स आप अपनी डाइट को इन प्लेस रखें। ईट क्लीन, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक, एंड प्रोटीन इंटेक की कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 1.5। आपने कार्ब्स को सरप्लस में रखना है बट एक्सेसिव सरप्लस में नहीं रखना, and you still need to cut off all the junk food and artificial sweeteners, sugars and processed food. You still need to avoid that. अच्छा, अब एक और इसके अंदर डाइटिंग के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब आप डाइट करते हैं तो आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि आपके मल्टीविटामिन्स आपके प्रॉपर नहीं है, और आपके जो दूसरे मिनरल्स हैं और वाइटामिन हैं वो अक्सर लोग जो है इसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। Vitamins play a huge role in balancing your hormones, right? And that is, I am actually going to discuss more about that in this video. But आपके मल्टीविटामिन प्रॉपर होने चाहिए, इन प्लेस होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मिनरल्स रिक्वायर्ड है, जिंक, मैग्नीशियम एंड ऑल ऑफ दैट, इसका भी आपको प्रॉपर इनटेक लेना है। अगर आप नेचुरल अपनी डाइट से, फ्रूट से, वेजिटेबल से पूरा नहीं कर पा रहे, then go for some multivitamin supplements, and there are tons of multivitamin supplements. I'm not going to specify any of them in this video. We can make another video on that supplementation के ऊपर, but just make sure you are taking the multivitamins and minerals. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें प्रोटीन ले लें हम, राइट, हम क्रिएटिन ले लें, हम ये ले लें, हम वो ले लें। सो इफ यू आर अ बिगिनर, पहली बात तो अगर आपने अभी जिम ज्वाइन किया और आपको जिम करते हुए 8 महीने भी नहीं हुए हैं कंसिस्टेंटली, तो इट्स प्रोटीन और क्रिएटिन ये सब चीज़ें आपके लिए कम्प्लीटली बेकार है मेरे ओपिनियन में, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर लाइक डिबेट कर सकते हैं, दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दैट, बट मेरी नज़र में इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। क्यों? बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस अ बिट मोर अबाउट दैट इन अनदर टॉपिक, जिसमें जो कि है हमारा एक्चुअली एक्सरसाइज, आपकी वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज किस तरह की होनी चाहिए। सो ये दोनों टॉपिक्स थोड़े से लिंक्ड है, सप्लीमेंटेशन और आपकी वेट लिफ्टिंग वगैरह। अब वेट लिफ्टिंग की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वेट लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मसल गेन के लिए, ठीक है। आपको अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बिगिनर, तो फिर आपको ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता अपने यू हैव टू फोकस ऑन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। आपको अपने वेट्स भी इंक्रीज करने हैं, आपको अपनी रेपिटेशन काउंट भी इंक्रीज करनी है, और साथ ही साथ आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका फॉर्म गुड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लेट्स से यू आर डूइंग अ बेंच प्रेस,
और इफ यू आर स्ट्रगलिंग मेंटेनिंग योर फॉर्म, राइट, पूरी बॉडी का जोर लग रहा है बेंच प्रेस करने में, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। आपको जो मसल टारगेट कर रहे हैं, आप उस मसल के ऊपर स्पेसिफिकली आपको टारगेट करना है व्हेन यू आर लिफ्टिंग अ वेट, व्हेन यू आर लिफ्टिंग द वेट। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, सो इट्स फॉर मिडिल पैक्स, राइट, मिडिल चेस्ट के लिए। तो अब उसके अंदर आपका फोकस यही होना चाहिए कि यू आर एंगेजिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल इन योर मिड चेस्ट while pushing the weight, right? So ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। वर्कआउट के अंदर मैं आइडियली रिकमेंड करता हूँ कि आपको हफ्ते में हर मसल, 5 मेन मसल्स हैं आपके, ठीक है, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एक मसल हो गया यानी कि आर्म्स, दूसरा मसल आपका चेस्ट हो गया, थर्ड मसल इज योर शोल्डर्स, राइट, फोर्थ इज योर बैक एंड द फिफ्थ वन इज लेग्स एंड कोर। तो ये पांचों मसल आपको वीक में एटलीस्ट एक दफा ट्रेन करने हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि लोग आइसोलेटेड वर्कआउट करें, आइसोलेटेड मसल ग्रुप को टारगेट करें एक दिन में। दैट मीन्स कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक दिन में अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं तो आप सिर्फ चेस्ट के ऊपर ही फोकस करें एंड मैक्स आउट योर चेस्ट। कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि भाई चेस्ट के साथ बाइसेप्स लगा लेते हैं या चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स लगा लेते हैं, दे मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बेस्ड ऑन वट एवर सूट्स देम। बट आई प्रेफर पर्सनली कि आप जो है एक दिन में एक ही मसल ग्रुप टारगेट करें फोकस्ड, और उस मसल ग्रुप को मैक्स आउट करना है, ठीक है। उसमें आप डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ एक्सरसाइजेज ऐड करें और उसके अंदर उन एक्सरसाइज में इंटेंसिटी भी इंक्रीज करें, यानी कि हर सेट में कोशिश करें कि मैक्स आउट हो। अगर आपके 15 रेप्स फॉर एग्जांपल 12 टू, अच्छा, रेप रेंज जो है आइडियली 10 to 15 रेप्स होनी चाहिए व्हेन यू आर डूइंग सेट्स। 10 is the minimum and 15 is the maximum, लेकिन you have to choose one number and stick to it, right? अगर आपने let's say choose किया कि okay you are going to do 12 reps, that's the ideal rep range। अगर आप 12 reps करने लगे हैं तो फिर 12 reps आपने हर सेट में करनी है मिनिमम। यू कैन नॉट गो कि अच्छा पहले सेट में 12 लगा ली, 15 लगा ली, दूसरे सेट में जो है वो 10 reps लगा ली, ऐसा नहीं करना। What you need to do is you need to be consistent with that number, और आपने यहाँ पे हर सेट के अंदर अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट उठाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैक्सिमम बेंच प्रेस का वेट लेट्स से के है 40 केजीज 20-20, अगर आप 40 केजीज मैक्सिमम लिफ्ट कर सकते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप पहले सेट से ही 40 केजीज पे चलें। दूसरे सेट में आप अगर इंक्रीज नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट मेंटेन दैट 40 केजीज, आप नीचे नहीं आए अपने मैक्सिमम से। तो दैट्स अनदर पॉइंट कि आपने अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को मेंटेन रखना है और इंक्रीज करना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि थर्ड सेट में एटलीस्ट जो आपका लास्ट वर्किंग सेट हो उसके अंदर आप कोशिश करेंगे, अगर आपने जैसे 40 है तो फिर आप जो है 42 पे जाएं, फिर थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करें और अगली दफा पे पहला सेट ही 42 से स्टार्ट करके देखें। सो आहिस्ता आहिस्ता जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग। अब इसके अंदर स्मार्ट भी प्ले करना है, फॉर्म अगेन आपका मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपका फॉर्म मेंटेन नहीं हो रहा और लेट्स से अगर आप 4-5 रेप्स के बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, सो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू मच एडवांटेज बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू बिल्ड द माइंड मसल कनेक्शन। अच्छा, माइंड मसल कनेक्शन के लिए फॉर्म इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर जस्ट बेंच प्रेस की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं और आप अपना मिडिल चेस्ट को एंगेज कर रहे हैं मैक्सिमम, तो फॉर्म तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हर सेट के बाद जस्ट पोज फॉर दैट स्पेसिफिक मसल। सो अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं सो जस्ट पोज फॉर चेस्ट, ताकि आपका चेस्ट के मसल जो है जस्ट कीप देम हार्ड फॉर अ वाइल, पोज करके रखें थोड़ी सी देर एंड यू विल रियलाइज कि पोजिंग इज अ बिट मोर हार्ड, ठीक है, देन नॉर्मल पोज करने से बेहतर है। थोड़ा सा मुश्किल है आपके सेट लगाने के बाद पोज करना, क्योंकि आपका मसल अभी एग्जॉस्ट हुआ है सेट के बाद एंड यू आर पुटिंग मोर फोर्स ऑन इट आफ्टर लाइक पोजिंग। अब इससे एडवांटेज ये होता है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन जो है वो बिल्ड होता है। अब इसमें बहुत सारे लोग जिनकी लाइक फिजिक्स अच्छी नहीं होती, दे काइंड ऑफ अवॉइड पोजिंग आफ्टर सेट्स एंड दैट्स बिकॉज कि उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है यार अभी हमारी बॉडी तो बनी है नहीं तो हम क्या पोज करें, लोग हंसेंगे। सो सी अगर कोई एक आपके ऊपर इफ समवन इज लाफिंग एट यू फॉर डूइंग दिस एट द जिम, तो एक बात क्लियर है कि उस बंदे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। अगर उस बंदे को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होता तो उसको पता होती कि बात के माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए पोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कभी भी कोई सीनियर वेट लिफ्टर जो होगा, सीनियर बंदा होगा जिसने एक्चुअली मेहनत करके अपनी बॉडी बनाई है, सही है, उसको इस बात का अंदाजा होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट पोजिंग इज एंड इज नॉट गोइंग टू लाफ एट यू। सो इफ समवन इज लाफिंग एट यू देन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उसको खुद कुछ नहीं आता, सही है।
सो पोज करें, हर सेट के बाद माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करें कि आपका पोजिंग जो रूटीन है वो लाइक 10 to 15 सेकेंड्स तो हो ही हो आफ्टर एवरी सेट, राइट। और साथ ही साथ पोजिंग के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो गैप है बिटवीन वन सेट टू अनदर, इट शुड नॉट एक्सीड 55 to 60 सेकेंड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लगाया बेंच प्रेस का, मैंने 15 सेकेंड्स की पोजिंग करी, 15 से 20 सेकेंड मुझे वेट को जो है रैक करने में लग गया, थोड़ा सा वेट लगाने में लग गया, लेट्स से मुझे इंक्रीज करना था, 30 सेकेंड्स यहाँ हो गए। सो आइडियली मैं ये करूंगा कि मैं बस 10 सेकेंड से 15 सेकेंड और बैठूंगा, सांस लूंगा, एंड देन आई जंप इनटू अनदर सेट। मैं ऐसा नहीं कि मैं बैठा हुआ हूँ, बातें चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, ये नहीं करना है हमें। दिस वी नीड टू अवॉइड दैट। जिम इज नॉट अ प्लेस, इज नॉट अ सोशल प्लेस, वहाँ पे आप हंसी मजाक करने और वक्त बर्बाद करने नहीं आए। यू ओनली हैव 1 hour एंड यू नीड टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट। सो फोकस करेंगे वर्कआउट आपका प्रॉपर हो, बातें हुए वक्त बर्बाद ना करें और हंसी मजाक में जस्ट फोकस ऑन योर सेट्स। 40 से 60 सेकेंड्स तक का ब्रेक लें, आइडियली 45 सेकेंड्स पे जस्ट जंप इनटू अनदर सेट एंड दैट्स अनदर थिंग। अच्छा, कार्डियो की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का एक मसला ये होता है, स्पेशली फैट लोगों का, दे वांट टू इंक्रीज मसल साइज लेकिन वो कार्डियो एक्सेसिव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फास्ट कार्डियो, एक्सेसिव कार्डियो जो है वो आपको मसल साइज बढ़ने नहीं देता, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप कार्डियो आपका लाइक मिनिमम हो, और एक्सट्रीम कार्डियो नहीं हो, स्लो कार्डियो से मेरा मुराद ये है कि ब्रिस्क वॉक हो गई, इस तरीके की चीजें हो गई, जो कि आपका लेट्स से आपकी हार्ट बीट तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेसिवली आप जो है स्वेटिंग नहीं कर रहे हो और एक्सेसिवली आपकी हार्ट बीट और सांस नहीं चढ़ रही, ठीक है। तो एक्सट्रीम कार्डियो नहीं करना हमने हमने कंट्रोल कार्डियो करना है, स्लो कार्डियो करना है, एंड दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, सो ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह इस तरीके के कार्डियो को आप एंगेज करें थोड़ा सा अपने आप को। एंड नाउ अनदर थिंग इज, हर सेट के साथ आपने कोशिश ये करनी है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग लेट्स से 3 सेट्स, हर एक्सरसाइज के साथ बने, हर एक्सरसाइज के साथ आपने कोशिश करनी है कि आपके 3 सेट्स हैं मिनिमम, तो थर्ड सेट जो आपका हो उसके अंदर आप लाइक इंक्रीज द वेट एज वेल, लेकिन उसके अंदर आप कोशिश करें कि इंटेंसिटी भी मजीद बढ़ाएं। सो फॉर एग्जांपल ट्राई टू डू अ ड्रॉप सेट। हर एक्सरसाइज में अगर आप नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट एक्सरसाइज में करें। अब ड्रॉप सेट से ये होगा कि आपका मसल और ज्यादा जो है वो टॉर्चर होगा। आइडिया ये है बॉडी बिल्डिंग के अंदर और वेट लिफ्टिंग में, जितना ज्यादा आप मसल को लाइक टॉर्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर जितना ज्यादा फोर्स और प्रेशर पुट इन कर रहे हैं, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बिल्ड होगा, ठीक है। सो यू नीड टू ब्रेक योर मसल्स, ठीक है। अंदर से आपने मसल्स को टॉर्चर करना है, उनको ब्रेक करना है ताकि दे काइंड ऑफ इम्प्रूव देमसेल्व्स, वो दोबारा से जुड़े और फिर बेहतर तरीके से जुड़े और स्ट्रॉन्ग भी बने और साथ साथ साइज भी इंक्रीज हो। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट, राइट। सो हर सेट के अंदर तो नहीं, लेकिन लास्ट सेट के अंदर आप कोशिश करें कि एटलीस्ट आप ड्रॉप सेट्स करें। हर एक्सरसाइज में नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट एक्सरसाइज में ड्रॉप सेट्स करें, इससे आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होगा, वर्कआउट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ड्रॉप सेट्स करने का जो आइडियल तरीका मुझे लगता है वो ये लगता है कि आप अपना मैक्सिमम वेट लगाएं। लेट्स से आपने 12 की रेप रेंज डिसाइड की हुई है कि आपने 12 रेप्स हर सेट में लगानी है, एंड थर्ड सेट आपने कहा कि मैं ड्रॉप करूंगा, तो आप लेट्स से 40 वाली एग्जांपल ले लेते हैं। बेंच प्रेस पे आपने 40 लगाया हुआ था, तो यहाँ पे मैं वेट इंक्रीज करूंगा, 45 या 50 तक भी ले जाऊंगा, और फिर मैं रेप्स थोड़ी सी कम करूंगा, यानी कि ज्यादा नहीं, 2 या 3 रेप्स कम करूंगा, तो 12 पे हूँ तो 10 रेप्स पे आ जाऊंगा। सो 12 के बजाय मैं 10 रेप्स लगाऊंगा इंक्रीज्ड वेट पे, एंड देन आई विल कट द वेट टू 70% और 60%। तो अगर लेट्स से 50 था तो मैं 30 पे आ जाऊंगा या 25 पे आ जाऊंगा, आ, नहीं 60-70%, तो या 30 पे या 35 पे आ जाऊंगा। सो उससे ये होगा कि फिर अब वेट रिड्यूस हो गया। अब मुझे अगला सेट जो मैं लगाऊंगा दोबारा विदाउट एनी ब्रेक, इस दफा मैं लगाऊंगा 12 रेप्स। सो ये आइडियल तरीका लगता है मुझे ड्रॉप सेट करने का। आपका कुछ और तरीका भी हो सकता है, बट दिस इज द वे आई डू इट एंड इट वर्क्स फॉर मी। ओके, सो दैट वाज अबाउट द वर्कआउट। अच्छा, वर्कआउट में एक और चीज है कि आपका वर्कआउट शुड लास्ट समवेयर बिटवीन 45 to 1 hour 15 minutes, ठीक है। 45 से कोशिश करेंगे मिनिमम 45 मिनट्स तो आपका वर्कआउट हो, ठीक है। और 7 से 8 एक्सरसाइजेस पर मसल ग्रुप आपका हो। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रेनिंग चेस्ट, कोशिश करेंगे 7 एक्सरसाइजें आप मिनिमम लगाएं,
डिफरेंट एक्सरसाइजेज के वेरिएंट्स जो है आप चेस्ट के ऊपर लगाएं, जिसके ऊपर आप अपर चेस्ट टारगेट कर सकते हैं, मिड चेस्ट, लोअर चेस्ट, डिफरेंट एरियाज में चेस्ट के आप उसको टारगेट करें। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशंस बनाएं। तो 7 एक्सरसाइजें ऐसी रखें जो कि आप हर वर्कआउट में अपने कर रहे हैं फॉर एवरी मसल ग्रुप। So that was about the workout and its intensity. The third factor is increase your testosterone level. So testosterone play a very huge role in improving your muscle size. जितना ज़्यादा आपका ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा उतना ज़्यादा ही आपका मसल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उतना ज़्यादा ही आपका मसल साइज इंक्रीज होगा और लीन मसल साइज इंक्रीज होगा। सो अब टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डाइट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ मल्टीविटामिन्स भी इंपॉर्टेंट है आपके, कि आपके मल्टीविटामिन्स और जो डिफरेंट न्यूट्रिशन सच एज जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर हो। ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स में होते हैं, अगर आप फ्रूट से नहीं ले सकते तो गो फॉर सम सप्लीमेंट्स। ठीक है, आपका वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए एंड अवॉइड टेस्टोस्टेरोन डिमिनिशिंग सप्लीमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सच एज स्मोकिंग और निकोटीन। ये टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा रिड्यूस करता है, एंड इफ यू कैन नॉट if you cannot completely stop it, then at least try to reduce it up to some amount। and अपनी नींद का ख्याल रखें, नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, 8 आवर्स मिनिमम आपकी नींद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नींद प्रॉपर होगी तो मसल रिकवरी भी होगी अच्छी, और साथ ही साथ आपके स्ट्रेस लेवल्स भी लो होंगे और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है स्ट्रेस, यू डोंट नीड टू स्ट्रेस आउट अबाउट डिफरेंट थिंग्स। आप कोशिश करें कि काम डाउन रहें, ट्राई मेडिटेशन एंड ऑल, उससे आपका दिमाग थोड़ा सा काम डाउन होगा, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इन इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। सो टेस्टोस्टेरोन इज is going to benefit you in other ways as well, but muscle building के लिए भी it's a very important thing. So try increasing your testosterone level. So that was the third point I wanted to discuss. I hope you guys like this video. अब मैंने ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी कर दी है क्योंकि I wanted to discuss like all sorts of factors which affect your muscle building, and I hope this video is going to help you. Everything discussed in this video is completely from my experience and practicals and my knowledge that I've gained over the years. It's not BS. I'm not trying to sell you anything or anything like that. So this has worked for a lot of people. मैंने अपने अराउंड काफ़ी सारे लोगों के साथ इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर चुका हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त who wanted to gain muscle, उनको भी मैं इसी तरह की सजेशन दे देंगे। I have learned about how to gain more muscle, lean muscle specifically. So मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस देना चाहूँगा, just stick to this everything which I am telling you in this video. इसको ट्राई करें। अब अगर आपको डिटेल चाहिए, फॉर एग्जांपल वर्कआउट के ऊपर, वर्कआउट रूटीन्स के ऊपर मजीद डिटेल चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल मे बी create another series for workout के आप चेस्ट के दिन क्या करें, and बैक के दिन क्या करें, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के दिन क्या करें, एक्सेट्रा। So I will be basically make any video that you guys will request for, and yeah, that's about it. So thank you very much for viewing this video. It's a long video again, and I apologize for that. See you in another video.